room. Okay. Renuka, you tell me what is the Hindi meaning of this sentence. Renuka, are you there? Okay, Renu, you tell me what is the Hindi meaning of this sentence. Sir, the Hindi meaning of make a room is जगह दीजिए. Thank you. Aparna, what was the last idiom? So the last idiom was when the god keeps, no frost can kill. When the Okay. god keeps, Wait, no wait. frost. Sarika, can you tell me what is the Hindi meaning of this sentence? The Hindi meaning of this sentence is जाको रखा है ना मार सके ना कोई. Thank you. Uh, Ritu, have I given Tom, Dick, and Harry to your batch? So please come again. My maid has come that time when you are asking me. Okay, no problem. Did anybody hear me? Yes, sir. You Yes, said sir, you have ki already given this. Okay. Sir, what was the English sentence, sir? Don't worry. They will give it to you. And firstly, if your CC is not on, so put your CC on so that you can read it properly. Can anybody repeat? What did I ask? Sir, you sir, asked you to have us. said, Okay, Aparna the after. uh, have I given you this interactive sentence? Tom, Dick, and Harry. Okay, I think now. See, Reduka, interactive sentences are so weird. Means you cannot guess easily. But here Ritu will tell you. Ritu, tell her the Hindi. Unmute yourself, Ritu. Uh, जाको रखे साइया मार सके ना कोई. Renu, you tell Renuka. Ritu was absent. Sir, Okay, Sarika, you when tell. okay. Sir, the Hindi meaning of Tom, Dick, and Harry is Era Gera Nathu Khera. Right. Sir, I didn't get that one. I knew. Uh, have I, uh, Aparna, have I given keep trying in your batch? Yes, sir, you have given. Keep trying in my Okay. batch. He is tied up. Sarika, Yes, sir, you have already given this. Aparna, my leg is asleep. No, sir, you haven't. In this batch, you haven't given. Okay, thank you, Aparna. So, beautiful ladies, today's interactive sentence is ladies, if your mobile is not horizontal, please go for it. Otherwise, you will not be able to see the blackboard properly. Renu, can you read this sentence? My leg is asleep. Thank you very much. Actually, I want to see that it is visible to all. Thank you. Uh, Renuka, can you tell me which chapter does this sentence belong? Oh,
Sir, this chapter belongs to information, Very good. something Thank you, informed. Nitya sir. Nirmala is present or not? No, sir, she is No, not. no, sir. She is not here. And so, is anybody rest? Because I can see here Renu, Renuka, Aparna, and Sarika. When your mobile is horizontal and my screen is big, Google shows here only 4 people. Okay, Renu, can you tell me which chapter does this sentence belong? Sir, this sentence belongs to be present. Absolutely right. Renu, one more question to you. Can you tell me where is be in this sentence? Sir, be is in the form of is. Absolutely good answer, proper answer. Not very big answer, not very small. Accurate answer. B is in the form of is. Now, Renu, mute yourself. Thank you. Renuka, can you tell me what is the subject of this sentence? Sir, the subject is sentence. The subject of the sentence is leg, my leg. Very nice. The subject of this sentence is my leg. Sarika, can you tell me what is my here separately? Sir, my is a possessive adjective here. Correct. Aparna, can you repeat what is my here separately? So my is the possessive adjective here. I repeatedly asked Aparna because Sarika's voice was chopping, so I could not hear the complete sentence. That's why I repeatedly asked. Okay. Uh, so my leg is totally subject and my is separately possessive adjective. Renuka, what is here? Sir, helping verb. Very nice. Try. Thank you. Mute yourself. Ritu, what is here? Sir, I don't know. Okay. Thank you. No problem. Aparna, what is here? So, sir, is in a main verb. nahin, is in a main verb here. Or I can say be is in a form of is. वो तो हमने रेनू से हाँ रेनू से पूछ लिया थैंक This यू is the main verb of this sentence. Is the main verb of this sentence. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है इस इज द मेन आप लोगों ने अगर रेणुका को बी चैप्टर शेयर नहीं किया है तो कर देना दोस्तों नहीं तो रेणुका की तकलीफ बढ़ती जाएगी ओके सारिका व्हाट इज asleep here Asleep is an adjective here. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर सारिका यहाँ asleep क्या है सर, sleep यहाँ adjective है. वेरी नाइस अब अगला सवाल सबसे एक साथ है इसको देखकर बताइए कि आपके मन में क्या विचार आ रहा सब अपने अपने मत व्यक्त कीजिए जो पहले बोलना चाहे वो अनम्यूट कर
सर मेरे पैर बंद गए हैं कुछ इस टाइप के। सर वो पैरों में झुनझुनी आती है ना, लाइक वो कभी पैर फोल्ड करके संभवतः अगर आपने बैठो। मेरा सवाल सुना नहीं। रेनू, you try. Ritu, mute yourself. Thank you. Okay. Sarika, you try. Sir, can I try? Yes, yes, Renu. Renu is getting some problem, technical Sir, problem. Okay. Sir, there is no power. Power is cut now in our area. That's why I think maybe Maybe at my place also there is no power. You will have to use the mobile data now. I'm also using mobile data. Sarika, are you there? Yes, sir, I'm here. सारिका, जो प्रश्न मैंने किया तुम्हें समझ में आया बेटा? Sir, come again, please. और किसी को समझ में आया हमने पूछा क्या है? सर आपने पूछा कि यहाँ पे asleep का क्या मतलब है, ऐसा कुछ पूछा? हमने पूछा व्हाट इज द हिंदी sleep मीनिंग को ऑफ? अब हमने ये पूछा, यहाँ देखो हमने उसको बॉक्स में रखा, ध्यान से देखो। तो हमारा प्रश्न ये है कि अस्लीप को देखकर आपके मन में कुछ विचार आ रहा है व्याकरण संबंधी? आप कोशिश करें, देखें अच्छे से और फिर एक एक करके बताएं, नहीं तो हम बताएंगे। सर जैसे स्लीप तो वर्ब है, उसमें आ लगा दिया तो अस्लीप उसको एडजेक्टिव बना दिया। वेरी नाइस। तो क्या बच्चों मैं आपको ये नियम लिखवा दूं? कौन कौन तैयार है नियम लिखने के लिए? आई एम रेडी सर। अच्छा, रेणुका इज रेडी। और कोई तैयार नहीं है? क्यों अपर्णा, तुम तैयार नहीं हो? रितु, तुम तैयार नहीं हो? सारिका, रेणु? सर आप केवल समझा बस दीजिए तो। बेटा तुम्हारे बोलने के बाद क्या Sir, I'm ready. समझाने और लिखवाने की जरूरत है? नहीं पर सर आप जब समझाते हैं ना तो बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाता है, मतलब क्लियर हो जाती है और चीजें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए बोल रही हूँ। थैंक यू। इतना सा छोटा सा नियम है दोस्तों। हम ये जो ब्रिटिश है बहुत सीमित भाषा वाले हैं, तो चीजों को वो इस तरह से अपना काम चलाते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वर्ब में आगे ए लगा के वो लोग वर्ब को, क्रिया को एडजेक्टिव बना देते हैं क्रिया के आगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हर जगह नहीं होगा कि पता चला हमने अपना बना लिया कुछ। ना 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 ना, जो वो लोग बना के देते हैं हमें उसको पालन करना, स्वीकार करना और समझना है। अब इसको पुख्ता करने के लिए एक आध उदाहरण और बताओ। ऐसा हमने बहुत पहले एक इंटरेक्टिव दिया था जिसमें करीब करीब वही बात जो यहाँ दिख रही है, याद करो। सर अवेक, वेक में आ लगा। वो एक सेंटेंस दिया था ना, तुम लोग के बैच में नहीं बोला जाता, ऑनलाइन में तुम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। यहाँ पे ऑफलाइन में क्या होता है, जिसकी बारी आती है अगर वो नहीं बोलता है तुरंत तो सब लोग जोर से चिल्लाते हैं गुड मॉर्निंग, तो वो हड़बड़ा के सर अलॉट भी है ना सर? क्या अलॉट भी है बताओ बच्चों? नो सर, नो क्योंकि सर। क्यों नहीं? लॉट अलग लिखते हैं।
उसमें आ अलग है और लॉट अलग होता है। नॉट अलग, वही मैं बोल रही हूँ। जैसे हम थैंक्स अलॉट कारण बोलते हैं, तो थैंक्स अलग है, आ है फिर लॉट है। या फिर किसी चीज एक के लिए कारण आई ये एम बताया, एक ठोस कारण बताओ बच्चे, इतना समझाने की जरूरत नहीं। एक तो आपने बता दिया, ठोस कारण बताओ। हम बताएं? नहीं सर, मैं बता रही हूँ सर। हाँ, थैंक्स जो है वो प्लूरल है, और थैंक्स अलॉट, बहुत सारा धन्यवाद। सर नहीं सर, अलॉट का तो मतलब बहुत सारा होता है, पर उसमें वो ए अलग जाता है और लॉट अलग लिखा जाता है, एक साथ तो नहीं लिखते उसको। और यहाँ पे हम अस्लीप लिख रहे हैं, अवेक लिख रहे हैं, पर उसको हम अलॉट अलग अलग लिखते हैं। तो ओके, सर वेरी उसका नाइस। ठोस कारण बताओ तो। हाँ, चलो अब हम बताते हैं। लॉट वर्ब है ही नहीं। अपन क्रिया सर से एडजेक्टिव सीख रहे हैं ना बेटा। लॉट क्रिया है क्या? सर लॉट एडजेक्टिव ही होगा ना? अभी हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे कि वो क्या है, लेकिन क्रिया है नहीं, है ना। अभी एक उदाहरण आपके सामने लिखा है जिसको हमने क्लियर कर दिया। दूसरा उदाहरण सारिका ने बताया, आई एम अवेक, मैं जाग रहा हूँ। एक इंटरेक्टिव बहुत पहले दिया था, तो उसमें भी वेक में अ लगा के अवेक बना है। तो वेक क्रिया है, स्लीप क्रिया है, वर्ब है। स्लीप इज अ वर्ब, wake is a verb. Wake up, I wake up at 6 o'clock, that is verb. But lot is not a verb. Okay, clear? अब इसको लिखने की आवश्यकता कतई नहीं, बस एक उदाहरण सामने लिखा दिख रहा है, दूसरा सारिका ने दे दिया, और आगे देखेंगे हम बहुत सारी चीजें। और आज किसी को क्लास के बाद कुछ इसी तरह का अचानक जहन में आए, प्लीज शेयर इन द व्हाट्सएप। बस ये सावधानी रखना कि क्रिया हो और उससे फिर एडजेक्टिव बना, लाइक दिस। ओके, so this sentence belongs to the chapter. My leg is the subject, karta. Is the main verb. Renu, what is the helping verb here? Sir, what is the? Helping verb here. Sir, there is no helping verb here. Very nice. वाक्य में सहायक क्रिया हो ये जरूरी नहीं, लेकिन मुख्य क्रिया का होना बहुत जरूरी है। बिना मुख्य क्रिया के वाक्य नहीं बन सकता। और रेणुका ने अगर पीछे तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों पहले 27 साल तक आप भी यही समझते थे कि इज, एम, आर सहायक क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम टीचिंग, यहाँ एम सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मुख्य क्रिया है इज है, sleep. मुख्य क्रिया इज है यहाँ। नहीं, आई एम रीचिंग में बोलना है ना सर। माई लेग मुख्य इज क्रिया अस्लीप is, ना। yes, मुख्य क्रिया is, yeah. अच्छा, तुम लोग का कनेक्शन कुछ गड़बड़ है, हम फिर से दोहराते हैं। Yes, sir. आज हमने अभी बोला, connection is हाँ, गड़बड़। हमने बोला कि आप 27 साल से इज, एम, आर को केवल सहायक क्रिया की तरह जानते आ रहे थे। वो सहायक क्रियाएं हैं किंतु प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आई एम टीचिंग, इसमें इज सहायक, एम सहायक क्रिया है, क्योंकि मुख्य क्रिया क्या है? रीचिंग। टीच। यस, टीच है, मैं पढ़ा रहा हूँ। शी इज डांसिंग,
इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? इज। Is. और मुख्य Dancing. डांस। डांस। दे आर लाफिंग, सहायक क्रिया। आर। मुख्य क्रिया लाव। Laugh. लाफ। वे हंस रहे हैं, वह नाच रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें इज एम आर सहायक क्रियाएं होती हैं, किंतु बी चैप्टर में वही मुख्य क्रिया बन जाती है जैसा आप देख रहे हैं। नाउ लेट्स, आपने गैस तो कर ही लिया, तो अब हमें वो प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। हमने पूछा कुछ और था, उस समय किसी ने कुछ और बता दिया था। इट विल डू। मेरे पैर में झुनझुनी चढ़ गई है। चलो पहले एक सिंगल राउंड क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं। हम सारिका से पूछते हैं, सारिका, whose leg is asleep? सर माय मदर इन लॉस लेग इज asleep. सारिका, किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई? सर मेरी सासू माँ के पैर में झुनझुनी चढ़ गई है। अपर्णा दी, whose leg is asleep? Sarika, who is sitting for a long is asleep. दी, किसके पैर में झुनझुनी? सारिका Sorry. समझ, My son leg is asleep. अपर्णा चलो हमारे साथ। द पर्सन who is sitting for a long is his leg his leg is asleep. कंप्लीट दैट। दी, जो किसके व्यक्ति- पैर में झुनझुनी चढ़ गई है? जो बहुत देर से बैठा हुआ है उसके पैर में झुनझुनी चढ़। रेणु भाभी, whose leg is asleep? My leg was asleep as I was sitting for. As I I sat long for meditation. किसके पैरों में झुनझुनी चढ़ गई है? Was is a अपर्णा, आपको भी 3 का दंड, अभी नहीं बाद में। सारिका को भी 3 का दंड। उनका आंसर भूतकाल में था, साफ साफ। अरे हाँ, रेनू आंसर वाज इन पास्ट, यू वर आस्किंग इन प्रेजेंट। तो 3 का sir. दंड अभी नहीं बाद। Okay, sorry, I will come again. My husband's leg is asleep. किसके पैरों में झुनझुनी चढ़ गई है? मेरे सॉरी दी, हस्बैंड के पैर में झुनझुनी चढ़ गई है। Come again. Repeat your English sentence, Bhabhi. नो दी, My योर husband- हिंदी सेंटेंस इज रॉन्ग। अपर्णा दी, किस कम अगेन प्लीज। किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई है? मेरे हस्बैंड के पैर में झुनझुनी चढ़ गई है। रितु, whose leg is asleep? My father-in-law's leg is asleep. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई है? मेरे फादर इन लॉ के पैर में झुनझुनी चढ़ गई है। रेणुका, whose leg is asleep? Neha leg is asleep.
So she can't stand. Ne- Neha leg रितु बेटा, is तुम्हें भी 3 सेकंड लग गया। asleep. Come again. Neha देखो ये बोल रही है ने हा लेग legs. asleep। अब देखिए रेणुका, इसका हिंदी क्या होगा? नेहा पैर, इसका मतलब होता है में जिन। पढ़ के देखिए रेणुका क्या हिंदी में चलता है। बोलिए नेहा। Okay. नेहा नेहा पैर। पैर है में झुनझुनी चढ़ गई। Okay. नहीं, अब वो तो हमने अच्छे से अनुवाद किया है आपको समझाने के लिए कि नेहा का अर्थ तो नेहा होगा, लेग का अर्थ हो गया पैर, इसका अर्थ यहाँ पे है हो रहा है, और इस पूरे का अर्थ हो रहा है मैं झुनझुनी चढ़ गई। तो पूरा सेंटेंस हो रहा है नेहा पैर में झुनझुनी चढ़ गई। और चूंकि गलती की का दंड यहाँ पे Neha's leg. सो देयर यू आर। Neha's leg is asleep, so she cannot stand. किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई रेणुका? नेहा के पैर में झुनझुनी चढ़ गई, इसलिए वो खड़ी नहीं हो पा रही है। झुनझुनी चढ़ गई है। चढ़ गई है इसलिए वो खड़ी नहीं हो पा रही है। Please go ahead, Renuka. Ask somebody else. Okay, who is rest? You can ask me, Renuka. Okay, Aparna? I'm ready to answer. Okay. Okay, sir. Whose leg is asleep? Their legs are asleep. किसके पैरों में झुनझुनी चढ़ गई है? उनके, सॉरी योर हिंदी आपका प्रश्न आपका है, जवाब हमारा भिन्न हो सकता है, इसलिए हमने कॉल किया था। किसके पैरों में सॉरी किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई? लगा है ऋतु को, अपर्णा को, सारिका को, वो सोने का दंड है कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसको स्वीकार कर रहे हो, सीधे सीधे सॉरी नहीं बोल रहे हो दंड के बाद। योर हिंदी इज रॉन्ग। आप हमारी इंग्लिश के हिसाब से अपना हिंदी मत बदलिए। आपका जो इंग्लिश है, आपका हिंदी वही होना चाहिए। किसके पैरों में झुनझुनी चढ़ गई है? सॉरी भाभी। आप ये चाहिए। इसलिए ये राउंड हमने अपने ऊपर लिया था कि चलो एक प्लूरल नंबर भी तो करके देखते हैं। प्रैक्टिकल नहीं है वो बात अलग, लेकिन अगर प्लूरल बोलना है तो कैसे बोलेंगे? पता नहीं साहब। And you are making mistake in Hindi, Renuka, not in English. Yes, sir. बहुत कठिन है डगर हिंदी की। The path of Hindi is little difficult. सर रेणुका के दोनों पैरों में झुनझुनी चढ़ती होगी, इसलिए वो पैरों बोल रही है। किसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई है? So there you are. So there you are. उन लोगों के पैरों में झुनझुनी चढ़ गई। माया ये तो ऐसा ना, कभी भी ये चीज गलती लाइफ में दोबारा नहीं हो सकती है। इतना वो बारीकी से बताते हैं आप, तो वो गलती दोबारा हो ही नहीं सकती है। थैंक यू रितु, थैंक यू सर। ओके, एक बार और पूछे रेणुका, आश्मी।
किसके पैर में झुनझुनी? English first. ओके, whose leg is asleep? My both legs are asleep. ओके, किसके The process. पैर में झुनझुनी चढ़ गई है? मेरे दोनों पैरों में झुनझुनी चढ़ गई। दोस्तों, प्रश्न अपनी जगह वही रहेगा, उत्तर भिन्न हो सकता है। जैसे अभी सबके उत्तर भिन्न हो गया, तो उत्तर भिन्न हो सकता है। ओके, आर ऑल सारिका, आर ऑल डन? यस सर, ऑल आर डन। क्या सभी का हो गया? जी सर, सभी का हो गया। अब हम एक तुम्ही से पूछ लेते हैं बेटा। इंटरेक्टिव इडियम का क्रम थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो हम आगे क्या करेंगे, कभी कभी छोड़ देंगे और बाद में। An empty vessel sounds much. Have I given it to you? No sir, you haven't No, sir, you given haven't. this in idiom. Okay. Renu, have you written this interactive? Yes, sir. I have written this interactive sentence. Thank you. क्या आपने ये interactive ये बोलचाल का वाक्य लिख लिया? Yes, sir. मैंने ये बोलचाल का वाक्य लिख लिया है। Can anybody guess the Hindi meaning of this idiom? Yes, sir. Please go ahead. चौथा चना बाजे घना। Wow. सर, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। Absolutely wrong. वो तो सर, पहले देख अजदल लिया। गगरी छलकत जाए। सर, अजदल गगरी छलकत जाए। छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए या Meanwhile, Sarika will start as it is. An empty vessel sounds much. थोता चना बाजे घना। अपर्णा दी। An empty vessel sounds much. अतजल गगरी छलकत जाए। रेणु भाभी। An empty vessel sounds much. थोथा चना बाजे घना। रितु। An empty vessel sounds much. अधजल गगन छलकत जाए। Are all done? रेणुका। No, I'm rest, sir. An Okay. empty vessel sounds much. अजदल गगरी छलकत जाए। All are done, sir. Okay. Renuka, can you tell me which chapter does this sentence belong? Oh, this is sleep. No idea, sir. Okay, no problem. Renuka, don't be panicked. Don't feel let down at all. Ritu, which chapter does this sentence belong? Sir, that sentence belongs to be present. Very nice. Thank you, mute yourself. Renu, which chapter does this sentence belong? Sir, I think this sentence belongs to present simple tense. Well, mute yourself. Thank you. No, do not mute yourself. Ask the same question to Aparna. Then Aparna will ask to Sarika. Okay. Aparna, which chapter does this sentence belong? रेणु भाभी, this sentence belongs to present simple tense. ये वाक्य किस अध्याय से संबंधित है? भाभी, यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित। Aparna ask. ओके,
Ritu, which chapter does this sentence belong? Sarika. Yeah, I am rest. Okay, Sarika, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to present simple tense. सारिका, यह वाक्य किस अध्याय से संबंधित है? यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल से संबंधित है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित है. Okay, Renuka, what is? Listen my question carefully, Renuka, and answer peacefully. What is vessel? What is vessel? Sir, vessels is a subject in this sentence. Okay. Bartan. Yes. Ritu, what is vessel? Vessel is the noun. Good. Vessel क्या है? Noun. बेटा पूरा बोलो, vessel क्या है? Vessel noun है. संज्ञा है. हाँ, ठीक है. Right. Renu, what is the meaning of vessel? Sir, the meaning of vessel is bartan. Okay. Vessel का हिंदी अर्थ क्या है? रेनू, complete the process. Vessel का हिंदी अर्थ क्या है? Yes, sir. Okay. Technical problem. हमने पूछा व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वेसल, उसके बाद बोला वेसल का हिंदी अर्थ क्या है. आई एम गोइंग टू टेक power bank because only 12% battery is left. Meanwhile, you can talk anything, whatever you want. Okay, let's we तो make रिपीट कर लेते हैं. Empty vessel sentence sounds in much. this. ठीक है. Complete the process. Ritu, complete. An empty vessel sounds much. अधजल गगरी छलकत जाए. क्रिएटिविटी करना है. Name anybody. An empty vessel sounds much. थोथा चना बाजे घना. रेणु भाभी. An empty vessel sounds much. Thotha chana baje ghana. Renuka. An empty sounds much. Sorry, रेणु का come again. An empty vessel sounds much. अजदर गगरी छलकत जाए. अधजल. अधजल गगरी छलकत ध जाए. धनुष का अधजल. 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 Hello. Okay, guys. क्या आप जानते Am I हैं audible? अधजल गगरी छलकत जाए का सेंस है क्या? सर, जो भरा हुआ शांत होता है और जो उथला हुआ रहता है वो छलकता ज्यादा है. ऐसा. लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, लाइक वैसा कुछ है. लिटिल नॉलेज. हाँ, ये ज्यादा
जिस व्यक्ति को कम जानकारी होती है वो ज्यादा उछलता है, जबलपुर की भाषा में बोले ना, उछलता है, हाँ सर। हाँ। और हमारे यहाँ एक हिंदी में मुहावरा चलता है, जिसे पता नहीं सुना हो कि नहीं, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, ऐसा भी चलता सुना है सर। है। हाँ, तो जबलपुर के लोगों ने सुना होगा, बाहर का नहीं पता। तो ये वही बात है, जिसको ज्यादा नहीं पता होता या जो जिसके पास जो अभी अभी अमीर बना है, जन्म से नहीं है, तो वो ज्यादा शो ऑफ करता है, ये इसका अर्थ है। अध जल गगरी छल कर जा। अब अरे पहले हम सबसे पहले एक चीज पूछते हैं रेणुका से। रेणुका, बी चैप्टर का वीडियो तुमने देखा है कि नहीं? हाँ सर, देखा है, पर एक ही बार देखा है। और वो ये क्या है, मस्त जी सर, हेलो। क्योंकि इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है बी चैप्टर, जी सर, और अगर मैं वो एक बार और क्लियर देख नहीं लूंगी होगा, सर। यू विल ऑलवेज गेट इट प्रॉब्लम। ओके सर, मैं देख लूंगी फिर से। रेणु, should I erase the Hindi meaning? Yes, sir. You should erase the Hindi sentence. Very good, thank you. Sarika, what is the subject of this sentence? Sir, an empty vessel is the subject of this sentence. Very good. An empty vessel is the subject of this sentence. Sarika, इस वाक्य का कर्ता कौन है? सर, इस वाक्य का कर्ता एन एम्प्टी वेसल है। Thank you. Renuka, what is the helping verb in this sentence? सर, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। Very nice. अब धीरे धीरे ग्रामर की ओर तुम्हारा प्रोग्रेस हो रही है। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में सहायक क्रिया होती नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम उधार लेते हैं। और कौन सी दो सहायक क्रियाएं हैं बच्चों, कौन बताएगा प्रेजेंट सिंपल में जो हम उधार लेते सर, डू or एंड does. डज। हैं? डू और डस, करेक्ट। ये तो हम उधार लेते हैं। ओके, थैंक यू। Ritu, what is the main verb of this sentence? So the main verb of that sentence is sounds. Aparna, what is the main verb of this? Sound. Sound is the main verb of this sentence. Okay, sound is the main verb of this sentence. What is the form, Aparna? The first form of the verb. And Renu is rest. Renu, what is much? Sir, much is an object in this Okay. sentence. Object. दोस्तों, यहाँ पे बताइए, नहीं, सबसे पहले हम रेट कर सकते हैं। रेणु का व्हाट इज साउंड हियर? सर, साउंड इज वर्ब इन दिस सेंटेंस। हाँ, नहीं, ये तो यहाँ पे है। चलो हम सारिका से पूछते हैं। सारिका, व्हाट इज साउंड हियर? सर, साउंड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अपर्णा, यहाँ पे नहीं, इधर। Sound is a noun. दोस्तों, आप साउंड को नाउन की तरह 27 साल से यूज कर रहे हैं, और ये अपर्णा ने इस बात को समझ लिया अच्छे से कि जब भी हम इंग्लिश पहले लिखते हैं तो मतलब वो वर्ड मीनिंग ही होती है। तो हम यहाँ पे पूछ रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, स्क्रीन पे देखा नहीं था। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ साउंड, रितु? Sir, आवाज. Sir, The Hindi meaning of sound is आवाज या ध्वनि. ओके। क्या किसी का ध्यान गया कि हम यहाँ पे साउंड को
क्रिया की तरह पहली बार प्रयोग कर रहे हैं? आज से पहले कभी किसी ने किया था क्या? नो सर। ओके, तो ये यहाँ पे क्रिया की तरह भी है। तो आज फिर से वही बात बहुत दिनों बाद दोहरा रहे हैं दोस्तों, अंग्रेजी में एक ही बात एक से अधिक रूप में काम करता है या कर सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा भी है। हाँ, कभी कभी दुविधा का कारण बनती है, तो हमें बहुत सारे शब्द रटने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे शब्द कबाड़ने की जरूरत नहीं। Can anybody tell me what should be the Hindi meaning of sound as verb? आवाज करना। आवाज। Very good. आवाज करना. Okay. Renuka, what should be the first form of आवाज करना? The first form of आवाज करना is sound. अच्छा, रेणुका अभी भी उस प्रोसेस से जवाब नहीं दे पाती। चलो हम रितु से पूछते हैं। रितु, what should be the verb for आवाज करना? The verb for आवाज करना should be sound. Okay, Renu, what should be the spelling of sound? So the spelling of sound should be SOUND. ये बोला था should be. I could not hear it. Yeah, I have. I said sir. Thank you. Sarika, what should be the second form of sound? Sir, the second form of sound should be sounded. And what should be the spelling of second form? Sir, the spelling of second form should be SOUNDED. Thank you. Aparna, what should be the third form of sound? So the third form of sound should be sounded. Thank you. And what should be the spelling of third form? The spelling of third form of sound should be SOUNDED. Thank you very much. चलिए हम एक सेंटेंस बी प्रेजेंट में बनाते हैं। चलिए बी प्रेजेंट खोल लीजिएगा। ओपन योर बी प्रेजेंट। Sarika, can you tell me what was the last sentence of be present? Sir, sentence of be present was Taj Lake Palace is only accessible by boat. Thank you. Aparna, what was the second last sentence of be present? So the second last sentence of the be present was are you sure? And are you sorry? Okay. No, are you sure? No, the second last sentence was don't worry, I'm back. Don't worry, This is the last. अच्छा. एक छोटा सा वाक्य लिखिए, ये रेणुका के चलते हैं। मेरे पापा जी व्यस्त हैं। सारिका रिपीट कर दो बेटा। मेरे पापा जी व्यस्त हैं। ओके रेणुका, तुम इस सेंटेंस की प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना, तभी चैप्टर और क्लियर होता जाएगा। रितु, यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस विद प्रोसेस। Okay, sir. हम फिर से भी ऐसे ही पूछ लेते हैं, जस्ट वन मिनट। हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Sir, I have to make this sentence. This Okay. sentence belongs to simple present tense, and this is an Sorry, affirmative. Ritu. Sorry, It goes, this sentence belongs to be present. no, it goes to. Okay, sir, no problem. Sir, this sentence
belongs to be present chapter and it is an affirmative चैप्टर sentence. मत बोला करो रेनू, केवल बी प्रेजेंट. Be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject and the subject is my father. Then I will Good. take the main verb. Main verb is. एक सेकंड रुकना रेनू. दोस्तों, आज से हम एक लाइन और बढ़वा देते हैं जिससे एक चीज हमारे जहन में और अच्छे से बैठेगी. सब्जेक्ट में दो शब्द हैं, रेनू ने बिल्कुल सही बोला, माय फादर इज द सब्जेक्ट. लेकिन रेनू, माय को अलग से बोलो और फादर को अलग से बोलो जरा. Okay. Firstly, I will take my and my is possessive adjective. Then नहीं, I will ऐसा take नहीं. my. पहले बोलो सॉरी. फर्स्टली आई विल टेक द पोजेसिव. यहाँ से Yes, sir. Sorry. Firstly, I will start the sentence by taking a possessive adjective, and the possessive adjective is my. Then I will take the subject, and the subject is my father. रेनू एक सेकंड रुकना. दोस्तों, इसको कंफ्यूजिंग तौर पे मत लीजिएगा. माय फादर इज ए कंप्लीट सब्जेक्ट, लेकिन आपके मुंह से जरा पोजेसिव एडजेक्टिव शब्द निकलवाने के लिए और जिनको कंफ्यूजन है उनके दिमाग में बैठाने के लिए हम ये गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, ठीक. अब फिर से बोल दो रेनू हाँ. कि द सब्जेक्ट इज माय फादर. Sir. अच्छा. Sir. हाँ, Firstly, okay. I take the subject, and the subject is my father. Is it okay? एब्सोल्यूट. I will take the main verb, and the main verb is. Main verb is. At the end, I will take the object and the object adjective. Sorry. At the end, I will take adjective, and the adjective is busy. वेरी गुड. काफी आत्मसात कर लिया रेनू, लेकिन एक छोटी सी गलती हुई है. नो प्रॉब्लम. इंग्लिश तो मुंह से निकली. अपर्णा, इट गोज टू यू. Who has to make this? I have to make this. I have to make the sentence. This sentence. क्या हो गया? I have to make this sentence. This sentence belongs to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is my. Later on, I will take the subject. I will take the subject, and the subject is father. Papaji. Papaji. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is. Later on, I will take the adjective or adjective, and the adjective is busy. नहीं, दो चीज बोलते हैं ना, adjective and It goes noun. to Noun. Sarika. Now, adjective or Okay, sir. Reflect. This sentence is belongs to. This Sorry. sentence is belongs to. Sorry. Sir, Sorry. I have to make this sentence, हाँ. and this sentence belongs to be present. क्या Is बोला था सुनाई मैंने? दिया हमें दो बार. Is this sentence is सुनाई दिया. belongs. Okay. This sentence belongs to present, be present, and it is an affirmative sentence. Firstly, I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is my. Later on, I will take the subject, and the subject is father.
then I will take the main verb, and the main verb is. Lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is busy. Lastly, I will put the full stop, and the sentence is my father is busy. दोस्तों, आपको ये दोनों चीजें बोलने का अभ्यास रखना है। हम आपके इस बात की कदर करते हैं कि अब आप समझने लग गए हैं कि बिजी एडजेक्टिव है, सीधे आपने बोल दिया। ये गलती के तौर पर मत देखिएगा, लेकिन हमारे जहन में ये बात रहना चाहिए कि बी चैप्टर में तीसरा शब्द या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन। तो अगर हम इस तरह से भी बोलते चलें, क्योंकि हमें जिंदगी भर तो सेंटेंस तो नहीं बनाना है, इसके बाद हमें इंग्लिश बोलते जाना है, तो ये क्लियर रहेगा। अब हम इसमें से यहाँ पे नाउन हम हटा दे रहे हैं, तो ये दिस इज एडजेक्टिव, आई एक्सेप्ट इट, एब्सोल्युटली एडजेक्टिव। चलिए हम राउंड शुरू करके विदा लेते हैं आपसे। सारिका, हु इज बिजी, आप चेंज कर सकते हैं। Okay. Sir, Modi ji is busy. सारिका, You have spoken out of my mouth. सारिका कौन व्यस्त है? सर, मोदी जी व्यस्त हैं। अपर्णा दी, who is busy? The front line warrior are busy. Warriors are busy. दी कौन व्यस्त हैं? फ्रंट लाइन वॉरियर्स बिजी हैं। रेनू भाभी, हु इज बिजी? आई एम बिजी। कौन बिजी है? यस, मैं व्यस्त। रितु, हु इज बिजी? Grocery shoppers are busy. ओके, कौन व्यस्त है? किराने के सामान वाले व्यस्त हैं। एग्जैक्टली। रेणुका, किराना वाला। who is busy? My daughter is busy. कौन व्यस्त है? मेरी बेटी व्यस्त है। Who is rest? All are done. You can ask Sarika. All are done. सारिका is Sarika, who is busy? Right now I am busy, भाभी। Complete the process. Okay. Sir, कौन